morning, student. Today I am teaching you social science for class 8. In this topic, I'll explain you today craft and industries in the colonial period. ठीक है? So this is your chapter 5th of history. In this chapter, we will study detail about the craft means जो hand से people बनाते हैं, ठीक है, the things which is be done by the hands of the people, okay, and the industries where the people's work and the colonial periods in that particular period. So in this chapter we will study first about thriving Indian textile industry, industrial revolution and British rule resulted in the declines of the Indian textile industry. तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जिस ब्रिटिशर्स के रूल को हटाने के लिए, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कम होती गई. plight of Indian weavers, artisans and craftsmen, or due to of Indian Britishers government, they totally exploited, they plights the Indian weavers, आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन्स, डिक्लाइन ऑफ इंडियन वुल स्टील्स, और धीरे धीरे हमारा जो इंडिया का जो वुल स्टील्स था वो भी कम हो गया, ठीक है. दे स्टील अवर, वी कैन से दे स्टील अवर वुल. So before industrial revolution begins in England, East India Company bought spice, textile and other goods from India and exported them to the England and the European countries, making innumerous profit. So same as with the peasants they done in previous chapter with the farmers, those who have their own lands, they raises the revenue of their land and they exploit very much of the farmers. So here also for the on that time before the industrial revolution began, India East Company bought spices and textile and other goods from the India and they exported to the other foreign countries for making innumerous profit. So after industrial revolution, machines made goods from England and started flooding the Indian markets. तो ये क्या करते थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जितने भी गुड्स यहाँ पे हमारे कंट्री में बनता था उसको यूरोपियन कंट्रीज़ में ले जाके बेचते थे हाई प्राइजेज़ में, और बहुत कम लो प्राइजेज़ वो यहाँ पे वर्कर्स को मिलता था. तो हाउ डिड द इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडियंस फेस दिस ट्रमेंडस चैलेंजेस. तो जो हमारी इंडिया की जो कंडीशन थी उस टाइम पे, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हमारा हुआ उससे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे इंडियन पीपल ने फेस करी, वी विल डिस्कस इन दिस chapter. Okay, so excellence of Indian textiles. So Indian textiles, especially cotton textile, had been famous all over the world. So their fine quality and excellent design made them highly popular all over the Asia. तो हमारा इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड बिकॉज ऑफ द फाइन क्वालिटी एंड एक्सेलेंस डिज़ाइन, जो डिज़ाइन था और जो उसकी क्वालिटी थी वो अपने आप में बहुत यूनिक एंड बी वेरी प्योर. दैट्स वाई इट मेक वेरी पॉपुलर इन ऑल ओवर द एशिया. सो द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू सोल्ड देम ऑल ओवर यूरोप वेयर दे वर मच इन डिमांड अमंग द एलाइट अपर क्लासेस. तो ये उन एरियाज़ में सेल किया जाता था यूरोप के जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी एंड वेयर actually the people need such types of things basically for the upper classes. So European traders first saw the fine cotton textile from India with the Arab merchants in a place called Mosul in Iraq. तो सबसे पहला जो यूरोपियन जो ट्रेड हुआ था, फर्स्ट सॉ द फाइन कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया. तो कॉटन से टेक्सटाइल वहाँ पर ट्रेड किया गया था, एक्सपोर्ट किया गया था विद द अरब मर्चेंट्स, किसी अरब मर्चेंट के द्वारा, एंड इन द प्लेस कॉल्ड मोसूल इन इराक. तो इराक में वो सेल किया गया था. सो दिस क्लॉथ बिगिन टू बी कॉल्ड मुस्लिन. तो इसलिए उस कपड़े को मुस्लिन बोला गया. मुस्लिन फ्रॉम इंडिया बिकम वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स फाइन टेक्सचर.
तो इसका जो टेक्सचर था बहुत बढ़िया था, जिसकी वजह से पूरे और वो वर्ल्ड में फेमस हुआ. ओके, नाउ प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स फ्रॉम इंडिया was called chentas and they were much in demanded by the British architect craft. ठीक है, तो ये जो हमारे इंडिया का प्रिंटेड वाला जो क्लॉथ था ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो आर्टिस्ट थे, जो क्राफ्ट थे, उनकी काफ़ी डिमांड थी इसकी. द वर्ड चिंतास इज ड्राइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंत, मीनिंग अ क्लॉथ विद डिज़ाइन ऑफ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावर्स. तो इसका मीनिंग होता है एक ऐसा क्लॉथ जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ फ्लावर्स से इंडिकेट हो. नाउ डोमिनेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. So Indian textiles dominated the world market till the end of 18th century. Producers of wool and silk in England started protesting against the import of Indian cotton textile. तो जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल थी वो वर्ल्ड में डोमिनेटेड मार्केट के रूप में जानी जाती थी इन 18th सेंचुरी. ठीक है, प्रोड्यूसर्स ऑफ वुल एंड सिल्क इन इंग्लैंड स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल. तो जो हमारे प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर्स ऑफ वुल एंड स्किल इन इंग्लैंड स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल. तो इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल था उसको इम्पोर्ट करने से उन्होंने क्या किया, बैन किया, प्रोटेस्ट किया कि ये सेल नहीं होना चाहिए. सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू प्रोटेक्ट दैम लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय बैनिंग द यूज़ ऑफ चिंताज और प्रिंटेड कॉटन फ्रॉम इंडिया. अब ब्रिटिशर्स ने टोटली बैन कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया कि इंडिया से कोई भी माल बाहर नहीं जाएगा, बट स्टिल द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वो इन ग्रेट डिमांड. तो उसके बाद भी ये काफ़ी डिमांड में रहा ड्यू टू देयर फाइन डिज़ाइन एंड सुपीरियर क्वालिटी. क्योंकि जो हमारा कॉटन का जो डिज़ाइन था, उसके जो क्वालिटी था वो अपने आप में सुपीरियर था एज वेल एज द फाइन डिज़ाइन. ओके, नाउ this much is enough today. Now the rest of the topic I'll explain in next video.